Very good morning to my dear students. It's standard. We were discussing about the Europeans, the arrival of Europeans, Portuguese, Dutch, French people, then Britishers, and how they ruled our country. Later on, we moved to the Indian Constitution, and now, today, we are going to learn about the traders, how the traders became rulers. It is very important to know that what were our shortcomings and what were their qualities, how they have chosen to become rulers after becoming traders. They came to India for trading purposes, and later on they have taken all the qualities, taken all the wealth from India with their mindset, and they're very less in number. In the population wise, if you think about India is way more populous than Britishers, but they have got different kind of a mindset, and the divide, engage, rule. These kind of policies have made them the greatest empire ever. And many of the kings have ruled India. The Mughal monarchs and many kings came to India and they ruled the India for 40 years, 30 years, 60 years. But this company has ruled India for more than 250 years. And this has got some kind of thing which we have to think about, that they have got some kind of a great strategy which we used and it actually worked for them. So today we are going to learn about how the traders became rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. Now it's an example. दो बिल्ली और monkey की कहानी. The two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. Their class teacher was sitting beside them said, "Children, this too is a policy." The teacher said that this too is a kind of a policy, that if two people are fighting for one thing, so there are greater chances the other one will get that thing. The other one will snatch that thing or grab that thing. So दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया, in a short thing. So this is a kind of a policy which was used by Britishers. The third party takes advantage of a quarrel between the two. Quarrel, लड़ाई के बीच का एडवांटेज कौन लेता है? थर्ड पार्टी ज़्यादातर ले लेती है. The British had expanded their empire in India with such a policy. The Britishers have expanded their empire. उनका जो empire है उसको उन्होंने बड़ा किया था. अब आप you can see the blue, that pink thing in that map area. In 1798 के अंदर कौन कौन से एरिया के अंदर उनका कब्जा था वो आप देखेंगे तो आसाम, बिहार, बंगाल and some areas of Madras. Then 1805 तक, यानी कि after 7 years, yes, 7 years आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश, हल्का सा ब्लूइश कलर है. तो वो वहाँ पे एरिया कहाँ, कौन सा एरिया था? अयोध्या के पास का जो एरिया, बुंदेलखंड का जो इलाका था, ठीक है, वहाँ पे उनका कब्जा था. फिर आप देखेंगे तो गोवा, कोचिन, यहाँ पे उनका कब्जा हो चुका था. देन 1836, यानी उसके 30 ईयर्स के बाद आप देखेंगे ग्रीन का जो ग्रीन इलाका है, तो गुजरात, मुंबई, भोपाल एंड भवलपुर, और उस इलाके में पंजाब के जो ऊपर का इलाका है, नेपाल के आसपास का इलाका है. देन 1856 के जो आसपास के इलाके हैं, येलो जोन है, उसमें नागपुर, अयोध्या, सिंध, पेशावर, पुमान, कांधार, काबुल, अफगानिस्तान तक के इलाकों तक वो पहुंच गए थे. तो दिस वाज द ब्रिटिश रूल. दिस वाज अ प्रोसेस, अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग. कैसे वो ग्रो कर गए, कहाँ से छोटे इलाकों से वो पूरे इंडिया पे कब्जा करने पे, काबिज करने पे सफल रहे. इनिशियली British came to India and established their rule over the Indians. By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. अब
ये चीज़ तय हो गई कि ऑन द इंडियन पॉलिटिकल होराइजन दीज पीपल वर अ पावरफुल, these people have got a powerful backing. These people have got their army, they've got their strategy, they know how to rule, they've got their money power, they knew the sea routes. So all the things were in their favor, and they have got their certain strategies, and they knew the shortcomings of the enemy. That was the big thing. सो इंग्लिश का एक फाइन एग्जाम्पल बता देता हूँ. स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर हम मुगलों ने हम पे राज किया, राजपूतों का राज था, परमार वंश के राजा थे, गुजरात के राजा थे, बहुत सारे राजा थे. बट आप सोचें और इमेजिन करें, कोई भी इम्प्लीमेंट इतना नहीं कर पाया. उन्होंने देखो ब्रिटिश एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर दी, और हम आज तक ब्रिटिश एजुकेशन पढ़ रहे हैं. अभी अब जो पढ़ रहे हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही है. किसी और मुगल में, उर्दू में, हिंदी में नहीं है, सिंधी में नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे हम, बट हम देखेंगे हम पढ़ रहे हैं किसमें, इंग्लिश के अंदर. सो दैट वाज देयर पावर. बाय द मिड ऑफ 18th century, the British had started to emerge as a strong power. Emerge means उगना, बाहर आना. As a strong power on the Indian political horizon. इंडिया की पॉलिटिक्स के होराइजन में, होराइजन मीन्स वेयर द लैंड एंड स्काई मीट्स, होराइजन बोलते हैं उसको, क्षितिज, हिंदी में क्षितिज बोलते हैं. वहाँ पे एक सूरज उगा. कौन सा? उस सूरज का नाम था ब्रिटिश. और ऐसा बोला जाता है द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर में सूरज कभी अस्त नहीं होता. वो सच में नहीं होता. उसका रीज़न बताता हूँ कैसे नहीं होता था. बिकॉज उनका जो पावर था, रीजन, इलाका, वो कहाँ पे, जापान से लेके आप देखेंगे तो अमेरिका तक तो उनका कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का. तो जापान में जब सूरज उगता है, उसके बाद जब सूरज डूब जाता है तो अमेरिका के अंदर सूरज उगता है. यानी उनका सूरज हमेशा ऊपर ही रहता था. दैट वाज द रीज़न दे सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर. सूरज कभी अस्त नहीं होता. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. ट्रेड के लिए आए थे. अब मैंने आपको बताया था ट्रेड के लिए उनकी बेसिक जो चीज़ें थी वो तो कॉटन रॉ मटेरियल, मसलिन, ढाका का जो मसलिन था उसके लिए वो आते थे. फिर आप देखो तो अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और मोस्टली स्पाइसेस. स्पाइस उनका मेन टारगेट था. स्पाइसेस को रीसेल करते थे. देन हाउ डिड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया. एंटायर इंडिया के रूलर कैसे बन गए? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेज मैनी सच क्वेश्चंस. अब ऐसे ब्रिटिश रूल की जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो इट अराउजेज, इट क्रिएट्स मैनी सच क्वेश्चंस. To serve their economic interest, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. अब to serve their economic interest, उनकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पैसा. इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, उनके पैसे को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे हैव इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया. उन्होंने राजनीतिक होल्ड कर दिया इंडिया के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट हमारी होगी तो हमें सब परमिशंस मिलेंगी, टैक्स फ्री काम होगा, लमसम टैक्स होंगे, या फिर टैक्स इवेजन हो जाएगा, टैक्स माफ, बिल्कुल टैक्स देंगे ही नहीं. उस तरीके से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे इंडिया से. और उसको उन्होंने यूज़ किया. उसके अंदर ब्रिटिश डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? कूटनीति करना. कूटनीति मतलब राजनीति का एक फॉर्म है कूटनीति. कूटनीतिक टैक्टिक्स ने मतलब टेक्निक्स यूज़ की, ऐसी टेक्निक यूज़ की विच वर वेरी इफेक्टिव ऑन इंडियन होराइजन. देन वेल्सलीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन. अब जो लॉर्ड वेल्सली थे उनकी पॉलिसी थी एक्सपेंशन की. एक्सपेंशन का मतलब क्या है? बड़ा करना. जो एरिया उनके पास है उसे और बड़ा करना है. अगर हमारे पास भी एक देखेंगे तो एक एक्टिवा है तो हम चाहते हैं 2 हो जाए, 2 एक्टिवा है तो चाहते हैं 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर हो तो और महंगी हो जाए. हम अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं. घर बड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती. वैसे ही वेल्सली, जो लॉर्ड वेल्सली थे, उनका एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, सबकी पॉलिसी थी. When Wellesley came to India as a governor general, cutthroat competition existed between England and France. Underline the word cutthroat competition. Cutthroat competition मतलब गला काट स्पर्धा. एक दूसरे का गला काटने की जितना कंपटीशन था. कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर होता है, उन दोनों में कंपटीशन हमेशा रहता है कि आई वांट टू बी द फर्स्ट वन. कुछ भी हो जाए मैं तो फर्स्ट आऊँगा, उसके लिए कुछ भी करूँगा. अब कई लोग क्या है कि दे यूज़, वो कई लोग बोलेंगे मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, और कई लोग बोलेंगे मैं गलत तरीके अपनाऊँगा फर्स्ट आने के लिए. तो वो दोनों ही चीज़ें हैं, पर इवेंचुअली फर्स्ट तो जो आना है वो आ ही जाता है. उसके लिए कई लोग बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. और एक और भी बोला गया था एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर.
ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो मोटिवेट करती हैं ऐसे लोगों को, दोज हु वांट टू गेन वॉट एवर दे वांट टू गेन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा था, ताकि इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as subsidiary alliance. अब फ्रांस पहले से ही कंट्रोल कर रहा था इंडिया के ऊपर, तब जब कंट्रोल उनका बढ़ रहा था, तब लॉर्ड वेल्सली हैव चोजन वन थिंग, दैट दे आर गोइंग टू गो फॉर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। एक नई पॉलिसी लाए थे जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा सब्सिडरी अलायंस में क्या क्या हो सकता था। एज पर द स्कीम, उसकी स्कीम क्या थी? एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। अब जो भी इस सिस्टम, इस ऑफर को ले लेता, ये एक जियो की स्कीम जैसा था, अगर आप ये ले लेते हो तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ब्रिटिश आर्मी देंगे। ब्रिटिश आर्मी हमारी तरफ से आप रखो, कुछ 10,000 सैनिक देंगे। ब्रिटिश आर्मी में कौन से सैनिक थे? उनके खुद के जो वहाँ के लोकल थे, उनको ही उन्होंने हायर किया हुआ था, वो रहेंगे। अब उनका खाना खर्चा है वो कौन उठाएगा? वो वहाँ का किंग उठाएगा। अब उसको 10,000 सैनिक का खर्चा खुद को उठाना पड़ेगा। पहली बात तो आर्मी हमने दे दी आपको, अब उसका जो खर्चा भी उठाना पड़ रहा है, प्लस एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव वो भी उनके रॉयल कोर्ट में रहेगा, जो कि जो भी डिसीजन वो लेंगे तो वो ब्रिटिशर्स को पता चल जाए, उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। एक तो पहली बात, उनकी जो आर्मी है वो बिना किसी पैसे के आराम से पल रही है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता, राजा उसको पाल रहे हैं, और उनको ये बोला कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पहली बात तो द आर्मी इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। और अगर आपको किसी और से वॉर करना है तो हमसे पूछ के वॉर करना पड़ेगा, तो वो वॉर भी नहीं कर सकते, तो एक्सपेंशन भी हो गया, कब्जा भी हो गया उस एरिया के ऊपर। British army as well as the British represented in the royal court. This way, the British could maintain their army without spending any money. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. अब ये भी थी, प्रिंसली स्टेट को अलाउड नहीं थी, जो स्टेट्स थे उनको अलाउड नहीं था कि अपनी आर्मी का वो यूज़ नहीं कर सकते थे अपनी इच्छा के बिना, वो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती ब्रिटिशर्स की। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग। पहले लोगों को लगा कि तो अच्छी बात है कि हमारे पास 10,000 की 20,000 की आर्मी है, तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, हम पे कोई हमला नहीं करेगा। पर जब ब्रिटिशर्स को किसी पे हमला करना होता तो वो फोर्स करते उनको कि हमारी आर्मी आपके पास है, चलो हमला करने जाओ, तो उनको ज़बरदस्ती दूसरों पे हमला करना पड़ता, यानी दे हैव टू वेज द वॉर अगेंस्ट देम, यानी ब्रिटिशर्स आर्मी और बड़ी हो जाती है। यूटिलाइज आर्मी, दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन बिगिनिंग मेड देम फील इंस्लेव्ड एंड थ्रेटन्ड। अब बहुत लोगों को ऐसा लगा वो तो गुलामी के अंदर आ गए, बहुत सारे राजा गुलामी के अंदर आ गए और थ्रेट एंड डर गए। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। और सब्सिडरी अलायंस से क्या हो गया? इट बिकेम अ स्लो पॉइजन, मीठा जहर जैसा हो गया, स्लो पॉइजन, जो कि सब जगह फैल गया। सबसे पहले कहाँ पे थे? द इंडियन स्टेट्स विच बिकेम द विक्टिम्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस और हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ये सब वहाँ के राजाओं के नाम है। तो ये सब दे केम अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेल्सलीज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ही वॉज द फर्स्ट विक्टिम। विक्टिम मतलब उसका वो प्रतिघाती बना, उनके ऊपर वो आजमाया गया पहला सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। निज़ाम वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट मैन, ही हैज़ गॉट ग्रेट फॉर्चून्स, पैसे बहुत थे उनके पास। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या, देन मैसूर के जो राजा थे, देन अयोध्या, देन तंजौर, जिसको तंजौर भी बोला गया, एंड कर्नाटका मेट द सेम फेट। और सबका एक ही फेट यानी कि किस्मत हुई। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग्स देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। और मराठा आपस में ही लड़ पड़े, और पेशवा और मराठा की जब लड़ाई हुई उसके बीच में ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम करवा दिया था कि तुमको फाइट करने के लिए हम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल और सर्टन अमाउंट ऑफ आर्मी टू यू। तो वो आर्मी के चक्कर के अंदर फाइटिंग हुई और वो दे वन। देन ओइंग टू द लॉसेज incurred by Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. अब जो निज़ाम मराठा से फाइट में जब हारे तो उन्होंने पहली बार अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उनको ज़्यादा सेना की ज़रूरत थी। देन टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो।
मैसूर के सुल्तान ने मना कर दिया. बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और 4 वॉर हुए जिसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट, और उसको भी सब्सिडरी स्टेट बना दिया गया. मराठा चीफ फॉट अमंग्स देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. नाना फडणवीस की डेथ के बाद मराठा चीफ्स फाइट फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ मराठा रीजन. उसके लिए जब वो लड़े तब वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. उससे जो मराठा के जितने भी स्टेट्स थे वो भी सब कंट्रोल में आ गए ब्रिटिशर्स के. द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर आज का जो यूपी के अंदर आप देखेंगे, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर द सेम बेट, और ये भी सभी के सभी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर चले गए. इन दिस वे within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. And due to that reason, due to Lord Wellesley's subsidiary alliance system, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आपने सुना होगा. शी वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. उसके अंदर क्या क्या रूल्स थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे. तो सेना के तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स थे. तो वो सब ऐसे नुकसानकारक रूल्स थे कि इवेंचुअली घाटा किसको होने वाला था, नुकसान किसे होने वाला था, जो किंग, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें ही नुकसान होने वाला था. वेल्सली एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया. ठीक है, लॉर्ड वेल्सली एंड बैटल फॉट बाय वेल्सली. ओवर हियर द पिक्चर इज गिवन. देन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज विद मैसूर. अब देयर वर ट्रीटीज मेड बाय सब्सिडरी अलायंस. ट्रीटीज मतलब समझौते किए गए कि हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आना, साइन किए जाते हैं वो. देन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चीफ्टेंस मतलब कप्तान बोलते हैं उसको, या फिर सेनापति बोला जाता है, चीफ्टेंस. द ब्रिटिश मूव टुवर्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे जीतने के बाद ट्रीटी की मैसूर के साथ, निज़ाम हैदराबाद मराठा के साथ कब्जा करने के बाद ब्रिटिश मूव टुवर्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दे एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद नेपाल, और नेपाल तक पहुँच गए. सेंसिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट. उनको लगता था नेपाल कभी न कभी हम पे हमला कर देगा, जो गुरखा फोर्स है वो हमला करेगा या हमारा वो प्रतिरोध करेगा. दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स, और फ्रंटियर के जो इलाके थे जो उन्हें कब्जा करने के लिए दे फॉट मैनी बैटल्स. फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिख किंग महाराणा रणजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स. और अफगान से फाइटिंग के लिए आप देखेंगे, आपने मूवी देखी होगी शायद केसरी के अंदर भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो महाराणा रणजीत सिंह थे उनके बहुत सारे लोग अफगानियों से बैटल में फाइट किया था. तो अफगान बैटल्स भी हुए थे जिसमें हेल्प आउट किया था ब्रिटिशर्स की महाराणा रणजीत सिंह द सिख किंग. उन्होंने हेल्प की थी ताकि अफगान को हराया जा सके और सिंध के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश किया जा सकता है. ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम बट कुड नॉट डू सो. ब्रिटिश का इच्छा ये थी कि वो ब्रिटिश किंगडम को भी एक्सपैंड करके सिख किंगडम के ऊपर ले आए, और सिख किंगडम पे कब्जा किसका हो जाए, ब्रिटिशर्स का. बट एज लॉन्ग एज महाराणा रणजीत सिंह वॉज अलाइव इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो दे फेल टू डू सो. So they kept friendly relations with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. He is a very strong ruler, very powerful fighter also. So he had set up a strong army with the help of European officers for the protection of the state. और खुद की आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, पावरफुल और यूरोपियन ऑफिसर्स से सुसज्जित बनाया था. He had attained victories over many nearby states. और आसपास के सब इलाकों में उनका कब्जा बढ़िया था. आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनार्की. और जब उनकी डेथ हो गई तो वहाँ पे एनार्की हो गई. एनार्की का मतलब क्या है, लॉलेसनेस, कि कोई राजा नहीं, कुछ नहीं, और सब जगह बिगड़ गया. टीचर क्लास में नहीं होता तो कैसी एनार्की हो जाती है, सब बच्चे कैसे कूद फांद में जाते हैं, जैसे सम सेब में से. जो द फादर ऑफ द पंजाब डाइड ऐसा कह सकते हैं. तो द पंजाब सफर्ड एनार्की. गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग केम टू इंडिया and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. अब उन्होंने annexation की पॉलिसी लाई, इनको साथ में रखना है, और इंटरफेरेंस, हम हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है तो हम संभालेंगे. ऐसा करके उन्होंने कब्जा ले लिया. कौन, सर हेनरी हार्डिंग. ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिख रूल. अब ये सोचने लायक क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर रूल फर्स्ट इन बंगाल. बंगाल में क्यों किया गया,
These things you have to find it out. And why was it essential for British to conquer the Sikh and Afghan territories? Sikh और अफगान टेरिटरीज को क्यों कॉन्कर करना ज़रूरी था? बिकॉज दे वर फ्रंटियर्स, वो इम्पॉर्टेंट था. हाउ कुड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द रूल ऑल ओवर इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ स्मॉल आर्मी? सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश अपना रूल्स इस्टेब्लिश करने में कैसे सक्षम रहे? उनका इतनी बड़ी आर्मी नहीं होने के बावजूद, छोटी आर्मी थी पर उनका जो थॉट प्रोसेस था वो क्यों लंबा था. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. बाद में हम डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पढ़ेंगे आराम से. देन वी विल टॉक अबाउट द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल, देन द एक्सरसाइजेस. सो in the next lecture we are going to discuss about how the traders became rulers, and I'm going to tell you something very important about the traders also, that how and why they chose to become rulers, because it was in their interest firstly. Then the Britishers, why Britishers are very important for us, why British community, they've got certain kind of a mindset which cannot be contained by anyone. अगर आप देखेंगे लिटरेचर को भी देखेंगे, पॉलिटिकल पावर को देखें, आर्ट फॉर्म को देखें, कहीं पर भी देखें, तो ब्रिटिशर्स का एक डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव माइंडसेट था. वो जो माइंडसेट है वो लेके उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कब्जा किया. जैसा हिटलर का भी एक माइंडसेट था कि वी आर द सुप्रीम रेस, वैसे ब्रिटिशर्स को आज भी आप देखेंगे, दे आर वेरी स्नॉबिश. वर्ड इंग्लिश में स्नॉबिश, स्नॉबिश मतलब दे थिंक दैट दे आर फार मोर सुपीरियर देन अदर पीपल. वो हम सबसे ऊपर है, वो उनका दिमाग के अंदर, खून के अंदर ही ऐसा है. जब ऊपर आप हो तो उसके एक दो चीज़ें हैं, या तो आप मुंह के बल गिरोगे, दूसरा आप हमेशा खुद को इतने सुप्रीम मानते हो कि आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस रहता है कि आप दूसरे से ऊपर हो गए. तो ये दोनों चीज़ें रहती है. जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, दोज आर इंग्लिश पीपल, दोज हु कैन गुड, दोज हु कैन डू द वर्क, मतलब जो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको पहले से ही कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया मैं ये कर ही लूँगा. तो बाकी जिसको नहीं आता है वो घबराता है. तो ये सेम चीज़ें हैं कि उनको ये पता था कि दे आर मेड टू रूल, वो रूल करने के लिए ही बने. दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं कंप्लीट. देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर. आगे बढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज भी करेंगे. ठीक है, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग चैप्टर. प्लीज गो थ्रू इट एंड रीड अ लॉट. टेक केयर, स्टडी हार्ड. गुड डे.